Good morning, students. Welcome to online political science class. Again, we are moving towards the chapter. The chapter is UN. Okay, International Organization, chapter 6. Today we are again taking up another area. Okay, another area of UN. Uh, Today we are going to discuss about the viewpoint of India. Okay, as India is a peace-loving country, and UN has been developed or being taken into account or being established, okay, because of peace and security in the world, to maintain peace and security in the world. So India initially was one of the member of the UN. Okay, so when in 1945 UN has been taken place, or India is also in the initiative, okay, to become an independent country. Okay, that time India has advanced itself and it has tried to become a member of the United Nations. Okay, so being a peace-loving country, India is right from its inception. Okay, right from 1947 when India became independence, and then the whole of the struggle going on to develop India again from as India has been freed from the colonial role. And all these things went up: exploitation, then manipulation, then many things were being taken up by the Britishers. Many revenue has been finished up, and India is struggling to become again and to redevelop again in its new form, new shape, as the other colonial country has done so far. So India has tried to achieve its goal, okay, with different techniques, different with its different goals, different formats, different things. So India, as a peace-loving country, it has also initiated its foreign policy. Okay, and many things has been initiated in its foreign policy. So among all these foreign policies, what type of policies has been developed India? One of the greatest achievement India has done, that is the establishment of NAM, Non-Aligned Movement. That was the initiative put forward by Jawaharlal Nehru. So from that time onwards, India is one of that country from the Asian continent which has tried to achieve as its own goal, its own type of identification in the international arena. Okay, and being a member of the UN, India itself has emerged into a developing in a good nation and in a very peaceful nation. So as India has went up and developed itself, that time India has also tried to say something in the or about the UN, okay, United Nations. In the 19th century, we can say that many of the third world countries or of the developing countries, many of the colonial countries has emerged. They have emerged from the colonial regime. Many countries in the different continent has been emerged, okay, with its new form, new shape, just like India. So India has always supported the underdeveloped countries or the developing nations, as we call them. Okay, so इंडिया हमेशा सपोर्ट करते आ रहा था, हमेशा इंडिया सपोर्ट करते आ रहा था, क्योंकि इंडिया खुद ही एक अंडर डेवलप्ड कंट्री के फेज से गुजरते गया हो, ठीक है। और जो अंडर डेवलप्ड कंट्री के फेज से गुजरते गया जो कंट्री, एंड टुडे दे हैव ट्रांसफॉर्म इनटू ए डेवलपिंग नेशंस। तो यूएन जो है, यूएन हमेशा क्या करता है, यूएन का जो ऑर्गन्स है, ओके, वो सब ऑर्गन्स में जो मेन एक ऑर्गन है, दैट इज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में देखा गया है हमेशा जो से है ना, दैट से वाज फ्रॉम द टॉप मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप, ओके, और या फिर जो 5 कंट्रीज है, जो यूके, यूएस, रशिया, फ्रांस एंड
चाइना, जो 5 जो कंट्रीज जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर्स, उनका से ज़्यादा चलता है. ओके, they have the veto power. They have the veto power to put anything into resolution or not to put anything into resolution, to pass something, some policies or not to pass some policies. Okay, तो ये जो है इसमें से क्या होता है, ज़्यादातर से it comes from the developed countries. Okay, so India has always said that the developing countries has also emerged in the international arena today. बहुत सारा डेवलपिंग कंट्रीज अभी इमर्ज होके आया है, पहले नहीं था बट टुडे इट केम. सो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज इमर्ज होके आया है, अभी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, इंटरनेशनल जो एरिना है, ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है अभी. ओके, और हमने देखा जैसे कि 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड, okay, from there also many states has again tried to redevelop themselves. They have also entered into the UN membership. तो ये सब कुछ मिला के देखा जाता है कि पूरी जो ये UN का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिया. And India has said the developing countries, they must also have a greater role to play in the UN. They must also have to have a say in the UN. UN का कुछ भी मुद्दा, कुछ भी इशू में उनका एक से होना जरूरी है. तो इसके कारण UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें मेंबरशिप का भी इंक्रीमेंट होना जरूरी है. जैसे कि 5 जो मेंबरशिप है, परमानेंट मेंबरशिप, वो 1965 के बाद फिर इंक्रीज नहीं हुआ. 15 का 15 ही रह गया. 5 परमानेंट मेंबर्स एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स. सो दैट शुड बी इंक्रीज. 5 से फिर इंक्रीज हो, फिर 10 से भी और इंक्रीज हो. देयर शुड इंक्रीज एंड मोर डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो शुड इन्वॉल्व and become the members of this UN Security Council. क्योंकि already they are the members of the UN. 193 countries are the members of the UN. So now they should also come forward and do something, okay, to develop the whole of the world, to say in the greater issues that are going on in the international arena. ओके, सबको मिलके इसके लिए काम करना चाहिए. फॉर प्रमोटिंग पीस, फॉर मेंटेनेंस ऑफ पीस, फॉर डेवलपिंग ऑफ डिफरेंट एरियाज और कंट्रीज, टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स दैट आर इमर्जिंग इन द वर्ल्ड, सिविल वार्स, एथनिक प्रॉब्लम, ह्यूमन राइट्स प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, क्लाइमेट चेंजिंग प्रॉब्लम्स. सो ऑल दिस इशू जो भी इमर्ज होके आ रहा है, और भी बहुत सारा इशू जो भी आ रहा है. So in all these things, developing countries must also have a greater role to play. So this is the things that UN को करना चाहिए, that was said by India. So today we are taking up the area, and that area is, what is the area? That area is India and UN reform. तो इंडिया का कौन सा से है उनका, उन्होंने क्या बोला इन यूएन के बारे में. ओके, तो दीज आर द थिंग्स दैट दे हैव सेड. सो मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा भी है, आप देखो. इंडिया सपोर्ट्स ए मोर एक्टिव रोल फॉर द यूएन इन प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन अमंग स्टेट्स. ओके, इट शुड प्ले ए मोर एक्टिव रोल. बहुत तो रोल तो प्ले कर रहा है. ओके, रोल तो प्ले कर रहा है, बट और सा एक्टिव रोल प्ले करेगा तो इट विल बी बेटर फॉर द फ्यूचर ऑफ द यूएन और फ्यूचर ऑफ द इंटरनेशनल community. Okay, next, India wants more expanded role from Security Council. तो जो expansion के बारे में मैंने बोला, that is the thing. अभी India itself was a strong contender of the 5 permanent membership in the UN Security Council. Okay, और इसके लिए जो भी कुछ भी क्राइटेरिया फॉर्म होता है, जब भी क्राइटेरिया रखा है यूएन में, that things are fulfilling by India. वो सब क्राइटेरिया इंडिया कहीं ना कहीं फुलफिल करते दिखाई दे रहा है. ओके, इट इज पॉसिबल फॉर इंडिया टू एंटर इन दी 5 परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. अभी उसके लिए जो क्राइटेरिया है उसमें इंडिया कैसा आता है. ओके, सो लेट्स सी दैट एरिया. नाउ सी हियर, इंडिया विशेस टू बिकम परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल. द रीजंस आर, बहुत सारा रीजंस मुद्दा होता है, वो रीजंस कौन सा है. India is the most populous country in the world. So India is one of the largest populous country in the world. अगर देखा जाए तो. ओके, सो जो क्राइटेरिया है यूएन का, इसमें एक ये है, तो उसमें
ये पॉसिबल है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। वी ऑल नो दैट इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द होल ऑफ द वर्ल्ड। सो डेमोक्रेसी के लिए हम बहुत फेमस है, हम डेमोक्रेटिक पैटर्न को हम अडॉप्ट करते हैं, ओके। सो फॉर दैट रीजंस आल्सो देयर मे बी एन पॉसिबिलिटी, ओके। नेक्स्ट हुआ इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन यूएन एक्टिविटीज। तो बहुत सारा जो यूएन एक्टिविटीज होता है, ओके। मैंने और एक लिखा, इंडिया ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स। तो यूएन एक्टिविटीज और यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स, जो यूएन का ऑपरेशन होता है डिफरेंट जगह पे जाके जो आर्मी को लेके जो यूएन जो ऑपरेशन करता है, इन दिस ऑल्सो फ्रॉम इंडिया मेनी ऑफ द मिलिट्री आर्मी मैन हैज बीन सेंट अप, ओके, फ्रॉम इंडिया टू पार्टिसिपेट इन द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स। उसके बाद जो मैंने आपको अर्लियर वीडियोस में बोला था, जैसे कि यूएन इट प्रोवाइड्स रिलीफ, ओके, टू द वार टॉर्न कंट्रीज, या फिर इट प्रोवाइड्स रिलीफ टू द एरियाज which has been suffering from natural calamities, ओके, डिवास्टेशन हुआ, या फिर और भी कुछ जो भी घटनाएं घटती है, एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो वो सब के कारण भी यूएन बहुत सारा हेल्प करता है। तो ये जो हेल्पिंग हैंड में भी इंडिया इज ऑलवेज कमिंग फॉरवर्ड एंड हेल्पिंग यूएन टू मेंटेन दैट एरिना। तो ओके, उस एरिना में मेंटेन करने के लिए जो भी कुछ चाहिए, जो भी कोशिश चाहिए, ओके, इट कम्स ऑल्सो फ्रॉम इंडिया। तो इन मेनी जो एफर्ट्स है, जो पीस कीपिंग एफर्ट्स है, उसमें भी, या फिर जो डिफरेंट एक्टिविटीज दैट इज टेकिंग अप बाय यूएन फ्रॉम टाइम टू टाइम, इन ऑल दिस इंडिया इज ए स्ट्रॉन्ग जो कंट्री है, जो स्ट्रांगली वो इन्वॉल्व करता है अपने आप को, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट इंडिया इज डूइंग सो फार, ओके। नेक्स्ट इज इंडिया इज इमर्जिंग एज ए great economic power. One of the more reason, because from 1991 we all know that India has entered into a thing called LPG, globalization, then privatization, and then what? It was a LPG, globalization, privatization, and it was liberalization. तो LPG का जो कैपिटलिज्म पॉलिसी है, उसमें इंडिया घुसा, and they are operating in different countries. MNC came into India, and because of all these intermixture things, India's जो वैल्यू है, इकोनॉमिक वैल्यू है, वो भी ऊपर में उठाया अभी, और फ्रॉम अंडर डेवलप्ड कंट्री इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म इनटू ए डेवलपिंग कंट्री। तो इन मेनी थिंग्स, मेनी सेक्टर, इट वाज सेम, इकोनॉमिकली इंडिया इज डेवलपिंग, ओके। नेक्स्ट वन, इंडिया इज ए रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर टू यूएन फंड। तो यूएन जो चलता है, दैट वाज यूएन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट फंड हैज टू कम फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कंट्रीब्यूशन। तो यूएन में जो कंट्रीब्यूशन होता है, इंडिया इज वन ऑफ द रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू द यूएन फंड। तो दीज आर ऑल द क्राइटेरियाज दैट इज नीडेड टू बिकम ए परमानेंट मेंबर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एंड दिस ऑल थिंग्स आर अवेलेबल इन इंडिया इटसेल्फ। तो अभी बहुत सारा कंट्री है जो इसको सपोर्ट करता है, जैसे कि जापान, जैसे कि जर्मनी, ओके, जैसे कि इवन अफ्रीका, they are supporting India's membership in UN Security Council. But there are some countries again who does not want India to go there or to reach there. From many countries, one of the country is Pakistan. Pakistan does not want India to go and have a seat in the UN Security Council, and we all know the reasons why. Because one of the Pakistan always thinks that India is one of their enemy country, okay. तो और उसमें जाके फिर उसका अपना एक पोजीशन हो जाएगा, that was not liked by Pakistan. Even China also somehow they don't want India to go and have a seat in the UN Security Council. फिर उनका अपना एक स्टेटस हो जाएगा, रुतबा बढ़ जाएगा, इंडिया का एक पोजीशन आ जाएगा, okay, because India is today being seen by the world as one of the major country जो peace loving country है, economically powerful है, okay, and in many things, many international issues, they have their own say, own viewpoint is there. So India different thingों में जो धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहा है. So now it's left to see कि इंडिया को क्या अपना एक जगह मिलेगा. Is India will be able to stand by in the UN Security Council membership, permanent membership, and there is lots of questions still now
waiting for us to see and watch. Okay, so this is all about today, India and its रिफॉर्म. इंडिया व्यू पॉइंट में रिफॉर्म कैसा होना चाहिए और इंडिया का खुद का अपना एक व्यू पॉइंट जो उन्होंने रखा है फॉर यूएन मेंबरशिप के लिए, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरशिप के लिए. ओके, सो दिस इज शॉर्ट टाइप ऑफ थिंग दैट टुडे वी हैव वेंट अप विथ दिस वीडियो. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.